سوائے ان کی کرپشن چھپانے، سوائے اس کے کہ یہ جو پینما کی لیکس ہیں اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنے میں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ملک میں ہر قسم کی معاشی طور پہ کسانوں کا حال دیکھ لیں، یعنی جو آج ملک کے حالات ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی اس کی کسی طرح کرپشن بچ جائے، ان کو کوئی ملک کا جو آج حالات ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور وہ یہ جو ہوا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر، یہ ایک آپ کے سامنے اس کی ایک ایویڈنس ہے، مثال ہے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں آپ کر رہے کہ پاکستانیوں کی جان گئی ہے۔ جو آج کنکلوڈ ہوا ہے نواز شریف کی، یہ 5ویں دفعہ ان کو موقع ملا گیا جو آج سپریم کورٹ میں آخری بات کی نواز شریف کے وکیل نے۔ پہلے انہوں نے پبلک سے خطاب کیا، پھر انہوں نے پارلیمنٹ کے آ کے نواز شریف نے صفائی پیش کی، اس کے بعد سپریم کورٹ پہلا گئے، جو پہلا بینچ بیٹھا، پھر دوسرا بینچ بیٹھا، پھر جے آئی ٹی آئی۔ یہ 5 موقع ملے تھے کہ پرائم منسٹر سچ بتا دے کہ جب ان کی پراپرٹی ڈسکور ہوئی، جو انہوں نے تسلیم کی کہ ہماری پراپرٹی ہیں، جو تب تک نہیں تسلیم کی تھی جب تک پینما کے اندر انکشاف نہیں ہوا، تو جب انہوں نے پراپرٹی انہوں نے تسلیم کر لی ہماری ہے، تو انہوں نے صرف یہ بتانا تھا کہ جناب کدھر سے پیسہ آیا پراپرٹی خریدنے کے لیے، اور پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا، منی ٹریل جسے کہتے ہیں۔ اب یہ 1.25 سال ہو گیا ہے، 5 موقع مل گئے ہیں، سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں کہا، ہر موقع پہ جھوٹ بولا ہے، ہر جگہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، ہر جو بات یہ کہتے تھے بچے کانٹرڈکٹ کر جاتے تھے۔ اور اب جو فائنل ایویڈنس آئی ہے سامنے، آج بھی نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں، سیالکوٹ کے اس میں جو بار تھا اس میں کیا کہہ رہے ہیں، چیمبر آف کامرس میں، کہ جناب میرا قصور کیا ہے۔ میں نواز شریف کو کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آپ کا قصور پتہ ہے کیا ہے؟ کہتے جی میرے پر کوئی کرپشن نہیں ثابت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد کیا چیز سامنے آئی ہے؟ ہم بھی پہلے سمجھتے تھے کہ نواز شریف کا کوئی کاروبار ہوتا ہے، ہم بھی سمجھتے تھے کہ جی بڑے بزنس مین ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ بزنس ہے کیا، ان کی بزنس ہی کرپشن ہے۔ نواز شریف کہتا ہے نا جی میرا قصور کیا، کوئی کرپشن نہیں ثابت ہوئی، ثابت یہ ہوئی ہے کہ یہ صرف کرپشن کر رہے تھے بزنس کے بہانے۔ یہ جو ان کی کمپنیز بنی ہوئی تھی، پتہ چلا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں ان میں پیسہ نہیں بنتا، یہ کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، ایک فرنٹ رکھا ہوا ہے یہاں سے کرپشن کا پیسہ ریسائیکل کرنے کے لیے۔ یہ پہلے تو انہوں نے شروع کیا اتفاق فاؤنڈری سے۔ اتفاق فاؤنڈری کی آپ ڈیٹیلز دیکھ لیں، وہ اور بات ہے کہ اب وہ اسحاق ڈار کے نیچے ایف بی آر نئے کاغذات نہ بنا دے، کیونکہ اب نئے کاغذات بن جاتے ہیں، لیکن جو ہم نے کاغذات دیکھے ہیں وہ تھوڑا نفع کرتی تھی جب تک نواز شریف 1985 میں چیف منسٹر نہیں بنا۔ جب سے وہ چیف منسٹر بنا ہے، اتفاق فاؤنڈری نقصان کرنے میں چلی گئی، اور وہ فاؤنڈری نقصان کر رہی ہے اور وہ بچے دیتی جا رہی ہے، نئی فیکٹریاں بنتی جا رہی ہیں۔ 92-93 تک کوئی 28 فیکٹریاں بن گئی، 30 فیکٹریاں بن گئی۔ ایک فاؤنڈری جو نقصان کر رہی تھی، بینکوں سے قرضے لیے، وہاں ڈیفالٹ ہو گئے۔ الیکشن لڑ لیا انہوں نے 2013 میں، جب کوئی اربوں روپے کا ان کا ڈیفالٹ تھا، دونوں بھائی لڑ گیا، جبکہ 20 لاکھ روپے کا ڈیفالٹ ہو، اب الیکشن ہی لڑ سکتے تھے۔ اس کے بعد اب جو پتہ چلا ہے کہ ان کی کوئی 10 کمپنیاں تھیں انگلینڈ میں اور کوئی آف شور کمپنیز، وہ ساری نقصان میں تھی، یعنی ان میں پیسہ نہیں بن رہا تھا، کوئی $10 ملین پاؤنڈ کا نقصان کر رہی تھی، تو وہ ان میں کوئی پروفٹ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کی جائیدادیں بڑھتی جا رہی تھیں، بچوں کی پراپرٹیز بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ حسن نواز 650 کروڑ روپے کے گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان کر رہی ہیں ان کی ساری جو کمپنیز ہیں۔ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ یہ ہو کیا، اب سب پکچر آ گئی عوام کے سامنے۔ بڑے پروجیکٹس کرو، جس کی آج نواز شریف کہہ رہا ہے کہ جی میں ڈیولپمنٹ کر رہا تھا،
ये डेवलपमेंट का मुल्क को कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन शरीफ ख़ानदान को बहुत फ़ायदा हुआ इस डेवलपमेंट का। बड़े प्रोजेक्ट्स करो, मोटरवे बनाओ, उसमें से बड़ा खांचा निकालो, वो बाहर कंपनीज में चला जाए। उस येलो कैप स्कीम बड़ा प्रोजेक्ट करो, उसमें से पैसे निकाल के बाहर। मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट से पैसे निकालो, बाहर बेटे बिठाए हुए उधर अपने बाहर। इसहाक डार ने 2 बेटे बिठाए हैं वहाँ दुबई में। ये सारा साइकिलिंग करते रहो, कंपनीज, फ्रंट कंपनीज खोली हुई हैं, यहाँ से पैसा बाहर भेजते रहो। इनका कारोबार ही करप्शन था। ये कंपनीज बनाई हुई थी, जो बिजनेस है ये एक फसाड था कि ये जी हमारे बहुत बड़े हम बिजनेसमैन हैं। इनकी सारी आप बिजनेसेस, आप जब भी कभी इनकी तफ्तीश होगी, इनकी बाकी बिजनेसेस, इनकी शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, पता चला जी वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक फ्रंट था। फिर हुदैबा पेपर मिल, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई हुई थी। ये सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। और नवाज शरीफ से जब पूछते हैं लोग, जी मेरा कसूर ही कोई नहीं है, मैंने कुछ गलती नहीं की। मैं JIT में जाके मेरे सवालात थे, JIT में नवाज शरीफ आपने जवाब देने थे। जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि JIT सिर्फ बनी थी मजीद आप अपनी सफाई पेश करें, जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं कर सके, वो मौका दिया था इन्हें। तो वो बजाय मौके का फ़ायदा उठाने आज आपके सामने आ गया है कि नवाज शरीफ के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जो चीज़ें कहीं झूठ बोली, हम जब सुप्रीम कोर्ट में थे, हमने कहा गल्फ स्टील जो ये कहते हैं कि जिससे सारा पैसा बन के और फिर वो कतरी को दिया और कतरी ने फिर बेटों को भी पैसा दे दिया जो अरबोपति बन गए। अल तौफीक के भी अरबों रुपए के वो कर्जा वापस कर दिया। लंदन फ्लैट्स भी कतरी ने दे दिए। हम तब ही कह रहे थे कि गल्फ स्टील में तो पैसा ही नहीं था, वो तो नुकसान में थी, वो साबित हो गई है। हम कह रहे थे कतरी फ्रॉड है, वो साबित हो गया। हमने कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियरी असल मालिका हैं 2 कंपनीज की जिनकी 4 मेफेयर के महलात हैं, वो भी साबित हो गया। वो वहाँ की उनकी FIA ने कंफर्म कर दिया है कि ये वाकई असल मालिका हैं। हमने कहा जो इन्होंने ट्रस्ट डीड बनाई थी वो हसन नवाज और मरियम नवाज में, वो फ्रॉडलेंट है, वो भी साबित हो गई। तो अब जब इनके लोगों ने कहा जी ये इमरान नामा है, JIT नहीं है, मतलब उनका कहने का कि जो हम अदालत में कह रहे थे वो सारा साबित हो गया, और जो ये कह रहे थे सारा झूठ हो गया। एक चीज़ इनकी अभी तक सच नहीं निकली। जितनी भी इन्होंने चीज़ें सामने लाई सारी साबित हो गई हैं कि फ्रॉड थी। अब इनको मौका मिला था, अब आपके सामने है जो कि सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। मैं अभी भी नवाज शरीफ को कहता हूँ आपके पास वक्त है, इस्तीफ़ा दे दें। मुल्क सारा स्टैंड स्टिल पे है। ये जो आप बार बार लोग कहते हैं जी डेवलपमेंट रुक जाएगी, कभी भी मुल्क के इतने बुरे हालात नहीं थे, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया, कभी इतना बड़ा डेफिसिट नहीं था। वो भी छुपा रहे हैं, वो भी जो इसहाक डार हैं। दूसरा, एक चीज़ ये साबित हो गई है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन है इसहाक डार। वो सारा ये काम करता था इनके लिए, वो बैठ के सारा जो फिगर, जो डेफिसिट की फिगर्स है वो भी चेंज करता है बजट के अंदर, उसकी हम फिगर्स वो नहीं मानते। उसका सिर्फ काम है जगल रही। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स देख लें, तारीख में कभी इतना बड़ा ट्रेड गैप नहीं है, एक्सपोर्ट्स इतनी कम नहीं हुई। आप फिस्कल डेफिसिट, किसानों का हाल देख लें, एक्सपोर्टर्स का हाल देख लें। इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो तो कभी इतने बुरे थे ही नहीं। और नवाज शरीफ कह रहा है कि जी मेरे रास्ते में रुकावट आ गई, मैं तो बड़ी तरक्की कर रहा था। तरक्की सिर्फ शरीफ खानदान के असासों में हो रही थी। इनके नए नए घर बन रहे हैं, इनकी अभी जिस तरह शहबाज शरीफ 3 और मजीद, अभी काफ़ी नहीं है, 3 और शुगर मिल लगाने लगा था जो कि हाई कोर्ट ने रोका है। कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ में जिधर शुगर मिल लगा नहीं सकते, शहबाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के ख़ानदान को इजाज़त दे दी
उस जगह पे बिल लगाने के लिए इजाज़त नहीं है, इसको करप्शन नहीं तो और क्या कहते हैं? तो बार बार कहते हैं जी हमारा कसूर क्या है, हमने गलती क्या की है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं फिर से कहता हूँ, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इनका कारोबार ही करप्शन था। ये था ही सब कुछ करप्शन का। ये फैक्ट्रियाँ तो फ्रंट थी सिर्फ करप्शन के लिए, हुदैबा पेपर मिल वगैरह वगैरह, ये सिर्फ फ्रंट थी। मैं जो अगली बात करना चाहता हूँ वो ये कि जो पाकिस्तान के वकला ने सब ने फैसला किया कि नवाज शरीफ के इस्तीफ़े को डिमांड करना, लीगल कम्युनिटी ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, बार्स ने, सुप्रीम कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, और अभी हमें पता चला है हैदराबाद के भी, जो ये वकील कर रहे हैं। देखें ना, आम लोगों को तो शायद केस में ये उलझाया हुआ है इधर उधर की बातें करके, लेकिन जो वकील हैं, जो कानून समझते हैं, वो सब इस फैसले पे आ गए हैं कि ये अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। तो मैं उनका वैसे शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उन्होंने इस मूवमेंट में निकले हैं। इस मुल्क के अंदर ये जो मूवमेंट है रूल ऑफ लॉ की और ये करप्शन के ख़िलाफ़। और मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन के मुतालिक सिर्फ जो आज हमारी कमेटी थी डॉक्टर आरिफ अलवी की, जो हमारी कमेटी इलेक्शन कमीशन में थी, हमारे बड़े सख्त रिजर्वेशंस हैं। ये जो हमने कोशिश की कि बैठ के पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इसके अंदर हम अपनी बात कर सकें कि अगला इलेक्शन ठीक हो। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे जो नुमाइंदे थे वॉकआउट किया इन्होंने। चार चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन को हम डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन इन चार चीज़ों के बगैर ना करवाया जाए। नंबर 1, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस मुल्क में 19 से 20 अरब डॉलर भेजते हैं। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा असास है। उनका हक है कि उनको वोटिंग राइट होना चाहिए, उनको शिरकत करनी चाहिए इलेक्शन में। और अभी तक ना पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कोई एक्टिविटी हुई है, हालांकि हमें कहा भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके अंदर देखा जाए कि कैसे ये वोट कर सकते हैं। तो हमें बड़ा सख्त रिजर्वेशन है कि मेरे ख्याल में इसलिए इनको शायद खौफ है, क्योंकि इनको डर है कि तहरीक इंसाफ के लिए शायद वोट कर दें, इसलिए कोई इन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि बुनियादी राइट है उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 2, हमें सख्त रिजर्वेशंस हैं इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इस इलेक्शन कमीशन 22 पार्टीज़ ने 2013 के इलेक्शन में कहा कि धांधली हुई है। उसके बाद जुडिशल कमीशन बैठी, जुडिशल कमीशन ने 40 फाइंडिंग दी कि ये इनको इस्लाहत करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। उस फाइंडिंग्स में एक ये था कि 35% फॉर्म 15 मिसिंग थे, 2.5 करोड़ बैलेट मिसिंग था, और अभी तक कोई इन्होंने किसी को सजा तक नहीं दी। यानी जो 40 फाइंडिंग्स कोई हमें पता नहीं, कोई इस्लाहत नहीं की, तो हमें क्या कॉन्फिडेंस है कि यही लोग फिर इलेक्शन करवाएंगे। और जो बाई इलेक्शंस आप उठा के देख लें, आप पूछें लोगों से कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, हर जगह के लोग कंप्लेन, पीटीआई की बात नहीं कर रहा, बाकी पार्टी जो हारता है वो कंप्लेन करता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ। तो क्या ऐसी इलेक्शन कमीशन नहीं होनी चाहिए जिसको सबको इत्मीनान हो? ये नहीं कि गवर्नमेंट को इत्मीनान हो, जो सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एम्पायरों के ऊपर इत्मीनान होना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हैं कि बाकी गवर्नमेंट खुश हो, 2 पार्टीज़ ने मिलकर इलेक्शन कमीशन बना ली, बाकी जो जमातें हैं उनको इत्मीनान ही नहीं है उसके ऊपर। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी अगर मान भी गया, उनको पंजाब की इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान नहीं है, नून लीग को सिंध की इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऐसी होनी चाहिए, अंपायर ऐसे होने चाहिए कि सारे खिलाड़ियों को जो भी मैच खेलने जा रहा है उसको इत्मीनान हो उसके ऊपर। तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ऐसी इलेक्शन कमीशन बनाए जिसको सबको कॉन्फिडेंस हो। तीसरी चीज़, हमें बड़ा खदशा है कि लास्ट टाइम जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे हमें हुआ कि इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बनाई जिसके ऊपर जब बात इलेक्शन हो गया तो खुद नजम सेठी ने कहा कि इलेक्शन से 9 दिन पहले सारी अथॉरिटी मेरे से चली गई थी
मॉडल टाउन यानी कि शरीफ बरादरान के पास। तो अगर केयर टेकर का तो मतलब ही है कि वो न्यूट्रल केयर टेकर हो। अगर वो सारी अथॉरिटी वहाँ चली गई थी और सारी ब्यूरोक्रेसी उनसे सुन रही थी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है। लिहाजा हम समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट चूज़ करने के लिए जो इलेक्शन करवाए सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। सिर्फ ये ना हो कि आपस में मुक मुकाओ दो पार्टीज करें, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। चौथा सर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। और फाइनली जी आखिरी कि हम ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो, बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आए। ये कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इससे वेरीफाई हो जाएगा। ये जो ठप्पे लगाते हैं मैंने बल्कि ट्वीट भी किया है कि लोग ठप्पे लगा रहे हैं पोलिंग बूथ में बैठ के। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो इसमें से ये चीज़ चली जाएगी। हम ये 4 चीज़ें डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन करवाने से पहले 4 चीज़ें करें। हाँ साहब, ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स ना हुई तो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये नहीं कहा। हमने कहा हम डिमांड कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए। एक मिनट सर, मैं मतलब पूरा मैं फिर से कह दूँ, 2013 के इलेक्शन में 22 जमातों ने कहा इलेक्शन में धांधली हुई है, यानी सारों ने कहा। हम ये कह रहे हैं कि ये पहली इलेक्शन इस तरह की करवाई जाए कि इलेक्शन से पहले सब मुतमईन हो जाएं रूल्स ऑफ द गेम अंपायरों के ऊपर। ये अभी तक 1970 के अलावा कोई इलेक्शन भी नहीं हुई जो मुतनाज़ा नहीं हुई। हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन पहले से तैयारी करके जाए, बाद में कोई शोर ना मचाए के धांधली हुई है। साहब आपने कहा कि वक्ती अगर फौरी इलेक्शन हो जाते हैं तो हम तैयार हैं, तो फौरी तौर पे तो ये रिफॉर्म्स ही होंगी और इलेक्शन होंगे तो फिर ये जो मैं आपको कह रहा हूँ 4 ये बड़े आसानी से कोई करना चाहे ये 4 पॉइंट्स कितना मुश्किल है करने के। कमेटी 2 साल से ये बताएं कि आपकी इन तमाम बातों के बावजूद हुकूमत या शरीफ फैमिली टस मस नहीं हो रही और कोई भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। और ये बताएं कि नून लीग के कितने लोगों ने आपके साथ अभी तक रब्ता किया इन लोगों ने? नून लीग के कितने लोगों ने वो मैं अब उनको पर्दा ही रखता हूँ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन ये आपने कहा जी कि इनको शरीफ ख़ानदान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो सारी ये याद रखें जी कि ये जमहूरियत जो होती है ना, ये जमहूरियत में इखलाकी कुव्वत सब कुछ होती है। डिक्टेटरशिप में जिस्मानी कुव्वत होती है, बंदूकों की कुव्वत होती है। इसलिए सारी जमहूरियत के अंदर जो जेन्युइन डेमोक्रेसीज़ हैं, जब कोई इखलाकी कुव्वत खो बैठता है वो रिज़ाइन कर देता है। अब डेविड कैमरन को क्या ज़रूरत पड़ी थी रिज़ाइन करने की? वो लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीता था इलेक्शन बरतानिया में, लेकिन क्योंकि वो रेफरेंडम, अगर रेफरेंडम हार गया उसको रिज़ाइन तो नहीं करना चाहिए था। उसने कहा मैं इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूँ। अब हम ये नवाज शरीफ को कैसे बताएं? मेरे ख्याल में उसको मतलब ही नहीं पता इखलाकी कुव्वत क्या होती है, क्योंकि उसने सारा डिक्टेटर की गोद में पला हुआ। उसको सिर्फ डंडे की कुव्वत पता है कि वो डिक्टेटर से भी ज़्यादा जुल्म करता है। जो ये इंतकामी कार्रवाई करते हैं ये किसी डिक्टेटर ने की, इसलिए इनको समझ नहीं है कि ये इखलाकी कुव्वत खो बैठा है। इसमें पब्लिक के अंदर जो मैं चैलेंज करता हूँ कि नवाज शरीफ पब्लिक में ज़रा निकल जाए ना, उसको गो नवाज गो आप देखें, क्योंकि वो पब्लिक लोग तंग आ गए इससे। बच्चे को पता चल गया है कि झूठ पे झूठ सारा ख़ानदान बोल रहा है। जब आपके झूठ पकड़े जाएं इखलाकी कुव्वत ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप लोग एक साथ नहीं कर सकते। उनका ये कहना है, जब हम उनसे बात करते हैं बगैर कैमरे के, यही कह रहे हैं कि तरीके साहब अपना मैंडेट मतलब अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं और जब हम बात करते हैं एक पॉइंट पे तो वो आगे चले जाते हैं। इसी का सप्लीमेंट है खान साहब, आसिफ जरदारी भी इस्तीफे की डिमांड कर रहा है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, और आप भी। क्या नया कोई सियासी अलायंस बनाने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इस वक्त तो आप सारे पाकिस्तानियों से पूछे वो डिमांड कर रहे हैं इस्तीफे की, तो इसका ये तो एक नेशनल डिमांड आ गई है अब, और इसके अलावा इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे, अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देगा नवाज शरीफ, तो आखिर में बुरी तरह जाना पड़ेगा। जाना तो अब इसने है। ये तो आप समझ जाएं कि ये नवाज शरीफ अब बच सकता ही नहीं है। एक मिनट, बच क्यों नहीं सकता? फिर से, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, पब्लिक ऑफिस, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पता चल जाए जो आपने डिक्लेयर नहीं की, आपके ऊपर ओनस होता है बताने के लिए कि वो किधर से पैसा आया। सिंपल चीज़ ये सबके लिए कानून है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। अब नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी बताना, वो नहीं बता सके, जो बताया वो झूठ निकला है। इसलिए या ये खुद इस्तीफ़ा देंगे और या फिर उनको निकाला जाएगा।
अच्छा खान साहब बताइएगा, आपकी पनामा लीसी जितनी जद्दोजहद रही है उसने जितना डैमेज किया है नून लीग को वो एक अलग है, उनका अपना एक वफाकी वजीर चौधरी निसाम जितना डैमेज कर रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने रवैये से, उनके बारे में आपकी सियासी नज़रिया क्या कहती है? क्या वो वाकई अलग होने जा रहे हैं नून लीग से, या वो एक तरह स्टैंड ले चुके हैं कि वज़ीर आज़म गलत है, उनके मुँह पे भी कह चुके हैं जो सिचुएशन हो रही है, जो होने जा रही है, पीटीआई में भी आ रहे हैं। वो तो कह चुका है कि देखिए मेरी अर्ज सुन, स्ट्रैटेजी से उठे चलिए। देखें इस वक्त स्वाय वो लोग जो जिनके ज़मीर ख़रीदे हुए हैं, पैसा दिया हुआ है जिनको, क्योंकि ये सारे इनका कोई नज़रिए पे नहीं है, जो इनका टीवी पे आके बोल रहा है उसकी शक्ल से आपको पता चल रहा है कि सबको पता है कि पकड़े गए हैं, सबको पता है कि करप्शन में पकड़े गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए हैं, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स में पकड़े गए हैं, टैक्स इवेजन में पकड़े गए हैं, सबको पता ही है। अब और तो चलें छोड़ें, वो दुबई के बाद क्या रह जाता है कि आप एक दुबई के अंदर आपने डिक्लेयर ही नहीं की थी, चेयरमैन है वो भी जो कंपनी FZE जो कंपनी है, आप उसके मार्केटिंग मैनेजर बन के पैसे ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर होके, तो सबको पता है कि ये पकड़ा गया है। लेकिन जो बोल रहे हैं या इन्होंने करप्शन का पैसा खाया हुआ है, या उनको डर है कि उसके बाद इनकी बारी आ जाएगी, और या वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको टुकड़े दिए जा रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता, मैं मीडिया के अंदर भी देख रहा हूँ क्योंकि मैं भी सारी पाकिस्तान कौम देख रही है, सबको पता है इस वक्त कौन अपने ज़मीर के मुताबिक चल रहा है और कौन रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं उसके साथ चल रहा है। ये इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी है, इनकी अपनी पार्टी के अंदर अब ऐसे लोग हैं जो अब इसे डिस्टेंस कर रहे हैं, और वो लोग आपके सामने हैं जिनको पता है कि इन्होंने नवाज शरीफ के साथ डूब जाना है, वो बोल रहे हैं। अच्छा खान साहब आबिद शेर अली, कल पंजाब के वजीर ने इस्तीफ़ा दे दिया जी। अच्छा खान साहब आबिद शेर अली जो है वो रोज़ाना आप पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन्होंने आपको कल भी और आज भी करप्शन की पैदावार करार दिया, आपके मरहूम वालिद से मुताबिक ना तो आप तरदीद कर रहे हैं और ना ही कोई आपका पार्टी तर्जुमान जो है वो इल्ज़ामात का जवाब दे रहा है, क्या वजह है? मुझे ये बताएं, एक मिनट मुझे ये बताएं कि इससे किसी ने पूछा है कि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में कब थे? इसको किसी ने को पता है? किसी ने इससे पूछा है? मेरे वालिद साहब, मैं आप सबके सामने क्लियर कर दूं, मेरे वालिद साहब 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप पे गए इंपीरियल कॉलेज इंग्लैंड में, तब अंग्रेज़ों का राज था, और उस स्कॉलरशिप के साथ था 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस पे काम करना था। ये वहाँ से वापस आए, तब तक पाकिस्तान बन गया था, 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम किया, ये छोड़ना चाहते थे, उसमें तो इंजीनियर्स नहीं थे, 3 साल और काम किया। 1958 में वो छोड़ गए थे और उन्होंने अपनी रिपब्लिक इंजीनियर खोल रही थी। मुझे कोई बता दे कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी कोई आपके पास होगा, यही तो पता बता दे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे कब। जी 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 पहली दफा है कि अपने घर से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप पहले आप दफ्तर में करते थे या घर में करते थे? तो एक तो ये कि जो ट्रैफिक जाम की होने वाले जो शायद आप उसके हवाले से, और दूसरा क्या ये आपकी पॉलिटिकल कैंपेन का स्टार्ट ये आपके ये सहाफ़ियों के लिए यहाँ की है क्योंकि कंप्लेन करते थे ऊपर की जगह नहीं थी, छाँव नहीं थी, कुछ कर लेंगे। हाँ, लेकिन मैं अब बैलेंस कर लेना, तब उसका भी कर लेंगे, पार्किंग भी कर लेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो चीज़ें बड़ी वादे जजेस के रिमार्क्स के अंदर आई कि हमने फैसला करना है कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करना है या हमने नैब के अंदर केस भेजना है। अगर नैब के अंदर केस भेजे जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होते, आप दोनों भी हो एक्सेप्ट सकते करेंगे? हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने तो डिस्क्वालीफाई होना है, और प्राइम मिनिस्टर ने अब जद्दे नहीं जाना, अडियाला जाना है, ये सबको पता चल गया है। जो चीज़ें सामने आ गई हैं, इनके पास सिवाय अडियाला की अब दूसरा रास्ता है ही कोई नहीं। क्योंकि मैं पीपी कहता हूँ कि इनको ECL पे डालें, सारे ख़ानदान को ECL पे डालें। जो चीज़ें सामने आई हैं, अब क्या चीज़ रह गई है? अब देखते हैं, अदालत में हम देखते हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ गई हैं, अगर ये फिर भाग गए तो इसका मतलब यहाँ तो कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा। अगर इन्होंने भाग जाना है, अगर इनको इजाज़त दे दी भागने की और ECL पे ना डाला, मुझे ये बताएं कि हज़ारों और लाखों के चोरी पे हमारे जेल भरे हुए हैं पाकिस्तान में गरीब लोगों के, तो वो बेचारे हज़ारों और लाखों की चोरी पे जेलों में पड़े हैं। यहाँ अरबों की चोरी है, अरबों छोड़ें, अभी तो ये पता है, ये तो अभी आपके सामने आई है, अभी आपको अंदाज़ा ही नहीं कि इनकी बाकी कितनी चोरी है बाहर। और हो सकता है कि वो जो वॉल्यूम 10 अभी जो छुपाया, अभी उन्होंने ओपन नहीं किया,
उसमें से अगर चीज़ें निकले पता नहीं कितनी और चोरी है। तो अगर ये बड़े बड़ों के लिए एक कानून है, वो बेचारे छोटे छोटे चोर बेरोजगारी में कोई करता भी है, छोटी सी चोरी वो जेलों में सड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको ECL में डालना चाहिए सबको। पेशावर के एक निजी स्कूल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो प्रिंसिपल था वो बच्चों के साथ उसकी जाति की वीडियोज़ आई ब्लैकमेल का तरह। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि एक तो क्या इस पर एक्शन लिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और ज़्यादातर चूँकि प्राइवेट स्कूल है तो क्या गारंटी है कि बाकी स्कूलों में इस तरह की चीज़ें नहीं होती? इसको इंश्योर करने के लिए आप क्या करते हैं? देखें, मुझे तो इसका भी इल्म नहीं है, लेकिन जो जुर्म होता है अगर आप उस जुर्म के ऊपर एक्शन नहीं लेते तो वो बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं अभी पता भी चला लूँगा कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लास्ट खान साहब आखिरी सवाल ये है, खान साहब KP में आपकी गवर्नमेंट खान साहब साथ ये भी 2 साल से ये चल रहा है, ये कमीशन, ये पार्लियामेंट में के अंदर ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म कमेटी है, ये 2 साल से मिल रही है, और ये आखिर में आके अब पता चला है इलेक्शंस आ रहे हैं, और जो मेन ये जो 4 मैंने आपको बातें कही हैं इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं है, इसलिए वॉकआउट किया। थैंक यू। चेयरमैन PTI इमरान खान बनीगाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि इन्होंने यानी नून लीग ने, मुस्लिम शरीफ फैमिली ने मुल्क के अरबों रुपए चोरी किए हैं, हजारों लाखों की चोरी वालों से जेल भरे हुए हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि ECL में इनके नाम ना हुए तो ये भाग जाएंगे। सारे शरीफ खानदान को ECL में डाला जाए, वज़ीर आज़म ने नाअहल होना है, अब जद्दा नहीं अडयाला जेल जाना है।